તો આજે સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે કેવડિયા ખાતે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન તો કર્યું, પરંતુ હવે જે ટ્રેન છે તેને લીલી ઝંડી બતાવી રહ્યા છે। આ ટ્રેન અમદાવાદથી દરરોજ 6:10 કેવડિયા ખાતે જશે। ખાસ આ ટ્રેનનું લોકાર્પણ કર્યું, લીલી ઝંડી આપી છે। હેરિટેજ ટ્રેનની ભેટ આપવામાં આવી છે। અમદાવાદથી કેવડિયા વચ્ચેની આ હેરિટેજ ટ્રેન જેમાં 3 કોચ છે। ई बाइक, ई गोल्फ कार्ट और ई बसों को प्रस्थान करवाएं। ई एकता नगर को ग्रीन एकता नगर बनाने के उपलक्ष्य में ये सौगात दी जा रही है गुजरात के इस अति महत्वपूर्ण स्थल को, एकता नगर को। आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता नगर को ग्रीन एकता नगर बनाने के उपलक्ष्य में ये लोकार्पण और ये प्रस्थान ई बाइसिकल, गोल्फ कार्ट्स एवं 30 ई बसों का ई बसों का शुभारंभ आज इस स्थल से हो चुका है। 12 करोड़ से भी ज्यादा इस प्रोजेक्ट की लागत और यह इलेक्ट्रिक बसें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में पर्यटकों की आवाजाही को और भी सुगम बनाएगी। साथ ही ट्रोमा सेंटर, 4 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल की स्थापना, गुजरात गैस लिमिटेड द्वारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक बाइक शेयरिंग, एकता नगर अहमदाबाद हेरिटेज ट्रेन, ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का आज हुआ शुभारंभ एवं लोकार्पण। विश्व के सबसे लोकप्रिय एवं भारत के सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका इस विशेष उपलक्ष्य के लिए। તો ખાસ આ હેરિટેજ ટ્રેન સાથે 30 જેટલી ઈ બસ અને ઈ સાયકલનું લોકાર્પણ કર્યું, તેને લીલી ઝંડી આપી છે। અને આખું જે એકતા નગર છે તેને ગ્રીન નગર બનાવવાની આગેકૂચ કરવામાં આવી રહી છે। આજે ખાસ ટ્રેન બનાવવામાં આવી છે। જે ટ્રેન છે તેમાં 3 કોચ રહેશે, જે અમદાવાદથી કેવડિયા સુધી દર રવિવારે સવારે 6:10 ઉપડશે, જેમાં લોકો મુસાફરી કરી શકશે અને કેવડિયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લઈ શકશે। સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આને હેરિટેજ ટ્રેન નામ આપવામાં આવ્યું છે કે જેમાં અલગ અલગ ઝાંખીઓ છે। સાથે આ વિશેષ ટ્રેન છે જેમાં 144 જેટલા પ્રવાસીઓ મુસાફરી કરી શકશે અને દર રવિવારે સવારે 6:10 આ ટ્રેન અમદાવાદથી ઉપડશે અને 9:50 કેવડિયા પહોંચશે, જેની અંદર એકતાને લઈને, અખંડિતતાને લઈને અલગ અલગ ચિત્રણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। સાથે હેરિટેજ ટ્રેનની જે ભેટ આપવામાં આવી છે તે રાત્રે, એટલે કે આખો દિવસ તમે ફરશો, પછી ત્યાંથી 8:30 આસપાસ ઉપડશે અને 12 વાગે અહીં અમદાવાદ આવી જશે। હિરેન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। હિરેન, એકતા દિવસના નિમિત્તે ક્યાંક ગ્રીન એનર્જીને વધુ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે અને આ ટ્રેન જે છે તેને લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી છે, શું વધુ વિગતો સામે આવી રહી છે? जो संपूर्ण एकता नगर એટલે કે કેવડિયા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે એ પ્રદૂષણ રહિત અને ગ્રીન એનર્જીને પ્રાધાન્ય આપવા માટેની થીમ ઉપર એ સતત કાર્યક્રમો આગળ એક થઈ રહ્યા છે અને એના જ ભાગરૂપે પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાળા વાહનો અંદર ન પ્રવેશે અને પ્રદૂષણ અહીંયા યોગ્ય રહે એ હેતુથી અગાઉ જે ઈ રિક્ષાઓ ચાલુ કરવામાં આવી હતી। આજે ફરીથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કેટલીક નવી જે બાબતો છે અહીંયા લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગ્રીન ઇનિશિયેટિવ હેઠળ 30 જેટલી ઈ બસો અને 230 પબ્લિક બાઇક શેરિંગ છે એનું પણ લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે અહીંયાથી કરવામાં આવ્યું છે। આ ઉપરાંત 100 કરોડના ખર્ચે અહીંયા જે વિઝિટર સેન્ટર બનવાનું છે એનું પણ પ્રધાનમંત્રીએ અહીંયાથી ખાતમુહૂર્ત વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કર્યું છે। આ ઉપરાંત 7.5 કરોડના ખર્ચે અલગ પ્રવાસીઓની સુવિધા માટેનું ફિસ્કિંગ બૂથ અને વોકવેનું નિર્માણ જે થવાનું છે એના પણ ખાતમુહૂર્ત પ્રધાનમંત્રી અહીંયાથી વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કર્યા છે। મહત્વનું છે કે જે કેવડિયા ખાતેથી અમદાવાદ સુધી અને અમદાવાદથી કેવડિયાની જે ટ્રેન છે એ પણ હેરિટેજ લુક આપી અને એક પ્રકારે પ્રવાસીઓમાં પણ આકર્ષણ ઊભું થાય એ હેતુથી
ટ્રેનનું આજે લોકાર્પણ પ્રધાનમંત્રીએ કરાવ્યું છે. ટ્રેન સવારે 6:30 વાગ્યાની આસપાસ અમદાવાદથી ઉપડશે, જે 9 વાગે કેવડિયા પહોંચશે અને રાત્રે 8 વાગ્યા પછી કેવડિયાથી પરત અમદાવાદ જશે. પ્રત્યેક રવિવારે આ ટ્રેન જે છે તે દોડશે. હેરિટેજ લુક આપવામાં આવ્યો છે, જે સ્ટીમ એન્જિન જૂના સમયમાં ચાલતા હતા એ સ્ટીમ એન્જિન પ્રકારનો લુક આપી આ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેન જે છે તે દોડશે. સાથે અંદર બેઠક વ્યવસ્થા એ પ્રકારની છે કે 24 થી 25 લોકો બેસી અને જમી શકે એ પ્રકારનો રેસ્ટોરન્ટ છે, વીવીઆઈપી રેસ્ટોરન્ટ છે અને એસી ચેરકાર સહિતની વ્યવસ્થા આ ટ્રેનની અંદર છે. આ તમામ બાબતોનું ફ્લેગ ઓફ જે છે પ્રધાનમંત્રીએ અહીંયાથી કરાવ્યું છે અને જે ખાતમુહૂર્ત લોકાર્પણ છે એ પણ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કેવડિયા ખાતેથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરાવ્યા છે. એ બાદ સીધા પ્રધાનમંત્રી અત્યારે હાલ જે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એકેડેમી છે કે જ્યાં આઈએએસ અને આઈપીએસ ને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, એ આઈએએસ પ્રોબેશન આઈએએસ અધિકારીઓ છે એવા 2023 ના અત્યારની જે બેચના આઈએએસ અધિકારીઓ છે એમનો આરંભ કાર્યક્રમ જે છેલ્લા 5 વર્ષથી આયોજન કરવામાં આવે છે એ આરંભ 2023 ના કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી થોડા સમયમાં ત્યાં પહોંચશે અને આ નવા પ્રોબેશનરી અધિકારીઓને કામ કેવી રીતે કરવું, ફિલ્ડમાં કેવી રીતે વ્યવહાર લોકો સાથે કરવો, એ પ્રકારની બાબતોનું ટ્રેનિંગ અથવા તો સેશન હોય છે એમાં પ્રધાનમંત્રી માર્ગદર્શન આપશે. બિલકુલ, આભાર હિરેન તમામ વિગતો માટે. તો ખાસ ખૂબ જ સુંદર હેરિટેજ ટ્રેનની લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી છે, સાથે ઈ સાયકલ, ઈ બસોનું લોકાર્પણ કરવાની સાથે જ આ ટ્રેન જે છે એ એવા મુસાફરો માટે મહત્વની રહેશે કે જે હેરિટેજ લુક સાથે અને હેરિટેજ સ્થળની મુલાકાત લેવા માંગે છે અને અમદાવાદથી દર રવિવારે આ ટ્રેન ઉપડશે. આજે સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિ કેવડિયામાં ભવ્ય કાર્યક્રમ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે. સીતા જઈએ. हर व्यक्ति एकता की मजबूत डोर से जुड़ा हुआ है. मन के अनेक है लेकिन माला एक है. तन अनेक है लेकिन मन एक है. जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का ये दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया है. 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाला आयोजन, 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड और 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में मां नर्मदा के तट पर राष्ट्रीय एकता दिवस का ये मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र उत्थान की त्रिशक्ति बन गए हैं. आज यहां पर जो परेड हुई, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, उन्होंने हर किसी को अभिभूत किया है. एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है. इस प्रतिमा के निर्माण गाथा में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है. इसके निर्माण के लिए देश के कोने कोने से किसानों ने खेती के औजार दिए, लौह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा दिया. देश के कोने कोने से मिट्टी लाकर यहां वॉल ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ. ये कितनी बड़ी प्रेरणा है. इसी प्रेरणा से ओतप्रोत करोड़ों की संख्या में देशवासी इस आयोजन से जुड़े हुए हैं. लाखों लोग देश भर में रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं. एकता के लिए दौड़, लाखों लोग
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए इसका हिस्सा बन रहे हैं। जब हम देश में एकता का ये प्रवाह देखते हैं, जब 140 करोड़ भारतीयों में एकजुटता के ये भाव देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूं। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। आजादी के पहले 25 साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछली शताब्दी में, जिसमें हर देशवासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था। अब समृद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले 25 वर्ष का अमृतकाल हमारे सामने आया है, अवसर बन के आया है। हमें सरदार पटेल की प्रेरणा से हर लक्ष्य को हासिल करना है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। आज भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। G20 में भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान हो गई है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों के बीच हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। हमें गर्व है कि आज भारत चांद पर वहां पहुंचा है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमें गर्व है कि आज भारत तेजस फाइटर प्लेन से लेकर INS विक्रांत तक खुद बना रहा है। हमें गर्व है कि आज भारत, हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की अरबों खरबों डॉलर की कंपनियों को चला रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। हमें गर्व है कि आज दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स में तिरंगे की शान लगातार बढ़ रही है। हमें गर्व है कि देश के युवा बेटे बेटियां रिकॉर्ड संख्या में मेडल्स जीत रहे हैं। साथियों, इस अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिक को
मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। इंडिया गेट पर जहां कभी विदेशी सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा थी, अब नेताजी सुभाष की प्रतिमा हमें प्रेरणा दे रही है। साथियों, आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, वो भी 5-6 दशक से लटका हुआ था। सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बीते कुछ ही वर्षों में पूरा हुआ है। साथियों, संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। जब भी मैं यहां आता हूं, इसका आकर्षण और बढ़ा हुआ दिखता हूं। रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, एकता नर्सरी, एकता मॉल, आरोग्य वन, कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, मियावाकी फॉरेस्ट, मेज गार्डन, यहां पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ही यहां 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। सोलर पावर जनरेशन में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एकता नगर बहुत आगे चल रहा है। आज यहां एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन का
एक नया आकर्षण भी जुड़ने जा रहा है। एकता नगर स्टेशन और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन में हमारी विरासत की झलक भी है और आधुनिक सुविधाएं भी है। इसके इंजन को स्टीम इंजन का लुक दिया गया है, लेकिन ये चलेगी बिजली से। एकता नगर में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। अब यहां पर्यटकों को ई बस, ई गोल्फ कार्ट और ई साइकिल के साथ पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम की सुविधा भी मिलेगी।